Good morning everyone. In our second video lecture of business law, I am going to discuss with you the types of contract. In types of contract, you can divide these contracts on the basis of enforceability, formation and performance. On the basis of enforceability, you can again divide the types of contract into valid contract, voidable contract and unenforceable contract. But before discussing this valid contract, I want to tell you what are the essentials of valid contract. In our last lecture, we discussed some of these points, but the remaining points we are discussing in this lecture. In last lecture, we discussed what is offer and acceptance. This is foremost essential element of the contract, that means a valid contract. Mutual consent. What do you mean by mutual consent? In mutual consent, both the parties take the same subject matter in same way. Some of the students asked me to explain the examples in Hindi, so I am in explaining the examples I will use the language Hindi. म्यूचुअल कंसेंट मीन्स व्हाट? म्यूचुअल कंसेंट एक ऐसी कंसेंट होती है जिसमें दोनों भी पार्टीज उस ऑब्जेक्ट को या उस सब्जेक्ट मैटर को एक ही तरह से लेते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि आई वांट टू सेल दिस पेन और आपने भी उसी इसमें लिया कि हाँ मैडम वांट्स टू सेल दिस पेन ओनली. लेकिन इफ आई हैव सो मेनी पेन्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा पेन्स है और मैंने सिर्फ कहा कि मैं एक पेन आपको सेल करना चाहती हूँ, लेकिन आपको ये पर्टिकुलर आप समझ रहे हो कि मैडम वो सेल करना चाहती है और मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये सेल करना है, तो यहाँ पे हम लोगों का म्यूचुअल कंसेंट नहीं है फॉर entering into a contract. So if this is missing, then we cannot say that the contract is valid one. The next one is legal obligations, which we have already discussed in our last lecture. Free consent. What is free consent? Free consent means which is a willful consent, where the both parties are willfully giving their consent to enter into a contract, then we say that there is a free consent. तो ये फ्री कंसेंट कब नहीं रहती है? जब आपने कोर्शन का यूज किया है. कोर्शन यानी क्या है? जोर जबरदस्ती से. इफ यू हैड टेकन द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, देन वी से दैट देयर इज नो फ्री कंसेंट. देन अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स when one party is in a position to dominate the behavior of another party. एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बॉस है, वो सबऑर्डिनेट को बिहेवियर को डोमिनेट कर सकता है. ऐसे इसमें अगर सबऑर्डिनेट की इच्छा भी नहीं है उस एग्रीमेंट को साइन करने की, इवन दो ही इज फोर्स्ड बिकॉज ही हैज अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ हिज बॉस, तो ऐसे इसमें भी अगर ऐसी कंसेंट दी गई है तो वी से दैट दिस इज नॉट फ्री कंसेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेड एज वैलिड, इट विल बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. देन फ्रॉड. फ्रॉड आप सभी जानते हो, जानबूझ के किसी को अंधेरे में रखना, दैट इज नोन एज फ्रॉड. मिसरिप्रेजेंटेशन, जो नहीं है उसे बताना, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन. और मिस्टेक यानी एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों की तरफ से कोई गलती होती है, नॉट इंटेंशनली, इंटेंशनली करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉड. इंटेंशनली कुछ मिस्टेक कुछ होता है तो उसे कहा जाता है मिस्टेक. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. तो अगर ये सब कुछ वहाँ पे प्रेजेंट है, then we cannot say that contract is a valid contract. So what is important? Free consent of both the parties while entering into a contract. Then the next element to treat the contract as valid one is capacity of a party. That means the person who are entering into a contract must be competent to form the contract. Who are competent? The major, that means who has attained the age of 18 years is said as a major one. He is competent to contract, but at the same time he must be of a sound mind. What is sound mind? That means he has a that means he can take the right decision. He has a knowledge what is good and what is bad for him. Then we say that that person is of a sound mind. अगर ये नहीं है तो we cannot say that the party is competent.
जैसे कि समझ लीजिए कि आप सभी 18 ईयर्स के हैं, आप साउंड माइंड के भी हो, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन साउंड माइंड की और भी ये है कि कोई पर्सन कभी साउंड माइंड का भी रह सकता है और वही सेम पर्सन कभी कभी अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, दैट मीन्स मल्टी पर्सनैलिटी। वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। Then lawful consideration, we already discussed in our last lecture. Lawful object also discussed. Unambiguous and uncertainty, that means unambiguous, ये होना unambiguous means वहाँ पे ड्यूअल माइंड नहीं है, या तो जिस तरह से मैंने बताया हुआ है उसी तरह से सामने वाले ने उसको लिया हुआ है, इस तरह से। और सर्टेनिटी यानी सर्टेनिटी होनी चाहिए। मैंने ऐसे एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये हम लोग करेंगे, मैं आपको ये देने वाली हूँ, मैं वो करने वाली हूँ, इसमें सर्टेनिटी नहीं है। सर्टेनिटी क्या होती है? टाइम की भी होनी चाहिए, कंसिडरेशन की भी होनी चाहिए। अगर ये सर्टेनिटी है तो ही देयर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देन मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए नहीं क्या होता है? एक एग्जाम्पल दे देती हूँ सुशांत सिंह के बारे में। रिसेंट केस बहुत पॉपुलर है सुशांत सिंह की, वो वाली। अगर पहले आप समझ लीजिए कि सुशांत सिंह के करीबी हो और आपने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपके सुशांत सिंह के साथ इंटरव्यू लेने के लिए उनको राजी करवा दूंगा, और इसके लिए मैंने आपको कहा है कि इतनी अमाउंट जो है हम सुशांत सिंह को देने वाले हैं। सुशांत सिंह को जब हम लोग देने वाले हैं एट दैट टाइम ही वाज अलिव, वो जिंदा थे, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी मुझे बोल रहे हैं कि मैं फिर से उसके सोल को, उसकी आत्मा को बुलाऊंगा और आपको उसके साथ इंटरव्यू के लिए परमिट करूंगा, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। इसलिए क्या है कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, जो पॉसिबल ही